Hello everyone. So now in the next video of the EMF subject is that we'll discuss about the electric flux. Okay. So now before to that, as we had discussed about the different charges, point charges, line charge, surface and volume charges, and also we knows about the Coulomb's law. तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का कि हाउ विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, so basically we can relate this concept by the experiment done by the Michael Faraday in the year of 1837. So basically he experimented and he just tried to explain the electric field, that how can we represent the electric field. So ultimately he got a concept as per his research that the basically we can say the field around a particular charge. So if we'll say if I'll take a particular charge here, this is the point charge. If I'll take this is the point charge, point Q, we can say. Okay. So now if we'll take any unit charge near to this point charge, so it will experience some force. Okay, and that force is given by the Coulomb's law, we know. Okay. So now so by the strength of this charge which experiencing a force on the other charge. Okay. So if we'll take these are the some kind of its effect of this charge around its surface, you can say, or you can say it's near about this point charge. So this we can say is a kind of the lines, we can say the force lines, which basically making the force on the other charge. Okay. तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अब ये जैसे चार्ज हमने लिया हुआ है, तो यदि हम इसके नियर में कोई भी अदर चार्ज लेके आएंगे तो ये जो चार्ज होगा वो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्लियर है. तो अब ये बात हो रही है कि वो फोर्स उसमें कैसे एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो स्ट्रेंथ की बात होती है इस पर्टिकुलर चार्ज की, तो ये हम किससे इसको डिनोट करते हैं या ये चीज़ क्या होती है. तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे इट्स ए काइंड ऑफ फोर्स लाइन्स. इट्स ए काइंड ऑफ फोर्स लाइन्स. तो कोई भी जो चार्ज होगा उसके अराउंड में यदि हम बात करें, जो भी हम एक स्ट्रेंथ फील करते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं हम वो फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लाइन्स. एंड दिस फोर्स लाइन्स बेसिकली इन a combined way we can say, or we can say in a bunch way, it is representing the electric field of this particular charge. Okay, and these force lines basically in general we say this is the electric flux lines. We say this is the electric flux lines. Okay, so this so we have to discuss about this electric flux lines in this topic. Okay, I hope you have got this point. So how we'll define this electric flux lines? The total number of lines of force in any particular electric field is called the electric flux or displacement flux. ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स भी बोला जाता है. सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बाय डिफॉल्ट वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स होगा, या हम बोल सकते हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. इसी के वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. राइट. सो इट्स सिंबल रिप्रेजेंटिंग बाय दिस इज कॉल्ड द साई. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल इज साई एंड द यूनिट विल बी चार्ज. Charge means coulomb. Okay, as because we know this electric flux is nothing but is given by this charge. तो अब इस चार्ज की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इस फ्लक्स लाइंस की होंगी, और जो फ्लक्स लाइंस की स्ट्रेंथ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. सो अल्टीमेटली वी कैन से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स symbol is psi and the unit is coulombs. Okay, so now next is the properties of the flux lines. हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द लाइन ऑफ फोर्स अराउंड ए चार्ज. जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, इट्स नथिंग बट द लाइन ऑफ फोर्स अराउंड ए चार्ज. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, द फ्लक्स लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज. तो यदि हम बात करें, यदि हम बोलें यहाँ पर कि मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और मैं एक और चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर, क्यू बोल देते हैं इसको. अब मान लेते हैं कि ये एक नेगेटिव चार्ज है. क्लियर. तो अभी ये क्या बोल रहा है, द फ्लक्स लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज. तो जो फ्लक्स लाइन्स रहेगा दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज
एंड गोज टू द नेगेटिव चार्ज। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड बोल रहा है इफ़ द नेगेटिव चार्ज अब्सेंट देन द फ्लक्स लाइन टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। तो यदि मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं, सो नाउ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बेसिकली वी कैन से it will terminate, we can say it will terminate to the infinity. So this will go to the infinity, we can say this will go to the infinity, we can say. Next बोल रहा है if the positive charge absent then electric flux lines terminates on the negative charge from the infinity. तो अभी ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट हो जाता है और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होगा बेसिकली ये कहाँ से आएगा, ये इन्फिनिटी से आएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस विल कम फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर पैरेलल एंड नेवर क्रॉस ईच अदर। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस रहेंगी दिस आर पैरेलल एंड नेवर क्रॉस टू ईच अदर। The flux lines are always enter or leave the charge surface normally। तो जो भी सरफेस होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या हो गया हमारा, एक हमने एक स्फीयर ले लिया, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी चार्ज रहेगा ये कैसे आएगा, इसमें नॉर्मली आएगा, राइट, ऑलवेज नॉर्मली आएगा या नॉर्मली आएगा या फिर नॉर्मली उसको लीव करेगा। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज इंटर or we can say always leave the charge surface normally. Okay, if the electric field is stronger then there are more number of flux lines. So quite obvious it's that if the electric field is stronger, यदि electric field की strength ज़्यादा होगी तो more number of flux lines वहाँ पर exist करेगा। The last point, if the lines are independent ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस। तो जिस भी मीडियम में हम इस चार्ज को प्लेस करेंगे उस पर ही जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स हैं ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उस मीडियम से क्या होगा वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इस प्रकार से दिस आर दी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लक्स लाइन्स। एंड वन मोर थिंग, यदि मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया हुआ है और मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है जिसमें जो चार्ज जो इसके सरफेस पे ऑकर हो रहा है ये कितना है, Q है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, दोनों हो सकता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज। तो अब जो इसके सरफेस पे जो ये चार्ज ऑकर हो रहा है, ठीक है, तो जितना ये चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर तो फ्लक्स लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर आ रही हैं। तो जितना ये चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स लाइंस भी क्या होंगे वहाँ पर हमारे इंटर करेंगे या फिर लीव करेंगे। सो हम यह बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो चार्ज होगा, जो ये चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर इंटर कर रही हैं लीव कर। इसलिए हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज इक्वल टू Q कूलम्स। तो जितना चार्ज अमाउंट होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इन द नेक्स्ट टॉपिक्स आई विल टेल यू सम मोर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस and I will tell you about the Gauss theorem which is very important in this topic. Okay, so this is about the electric flux and the properties of flux lines. If you have any doubt then mention in the comment box, and in the next video I will tell you about the electric flux density and its vector form which will become the base for our this topic. Okay, so thank you very much.